Good morning, students. So the topic of today's lecture is strategic choice. इससे पहले हमने strategic intent पढ़ा था. उसके बाद हमने environmental appraisal, corporate and the business analysis and appraisal and the internal analysis of business ये हमने पढ़ा था. And now we are going to discuss about the strategic choice. So strategic choice is actually a key aspect of strategic management process. And strategic choice, as the name suggests, choice word जहाँ पर आता है means हम बात करते हैं decision making की. Okay, so the process of strategic choice is essentially a decision making process. आपको पता है decision making process क्या होता है? Choosing the best alternative among the given one. Okay, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना एक पर्पस बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है. ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? स्ट्रेटेजिक इंटेंट से बनेगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू डिसाइड द कॉर्पोरेट विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. व्हाई? बिकॉज दे गिव अ डायरेक्शन एंड अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस एंड इट चैनलाइज द एफर्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द कॉमन गोल. सो that is the vision. इस vision के according now we have to choose, we have to generate the alternative, we have to find out what are the best or what are the alternatives or the options which are available for us in the market situation, and then we have to find out the best possible alternative of the most feasible, the best alternative, most suitable one. तो ये जो हम decision ले रहे हैं strategic choice का, जो best decision हम लेंगे, इसके लिए ये हमें ऐसे नहीं ले लेना होता है. इसके लिए हमें क्या है कि देयर इज अ सर्टेन फैक्टर्स और अ सेट ऑफ क्राइटेरिया. ओके, सो ये जो क्राइटेरिया या जो सिलेक्शन फैक्टर्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इसमें और दूसरे होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स. ओके, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डेटा ड्राइवन होते हैं. जो भी हमारे पास डेटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी एनालिसिस करके बाय डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, उनको यूज करके हम कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. और दूसरे होते हैं इसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स. सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन वंस एक्सपीरियंस, पर्सनल जजमेंट एंड एथिकल वैल्यूज. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. तो सबसे पहले हमको क्या करना है स्ट्रेटेजिक इंटेंट में? वी हैव टू फाइंड आउट द विजन एंड मिशन and relate our choice with the vision and mission of the organization. Secondly, we have to generate the alternatives. We have to search and find out all the alternatives or the options which are available for us in the given market scenario. And the third is the assessment of options. इसमें हम in terms of the given vision, mission and objectives, we will assess the various options which are available for us in terms of their profitability, their cost and their various kind of feasibilities, and then finally we select one option that fits with the intent. तो जो पर्टिकुलर ऑप्शन गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से हमारे विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स से मैच करेगा, फिट करेगा, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे एंड दैट विल बिकम अवर स्ट्रेटेजिक चॉइस. So now we will discuss about various approaches of strategic choice. See, there are certain options which we will validate and there are set of strategic alternatives. Okay, and here these are the strategic intent. जहाँ पर ये तीनों चीजें मैच करेंगी, एक फिट बनेगा, वहीं पर हम चूज करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को. Okay. So here there are three approaches of strategic choice which we will discuss in this lecture. First is the BCG matrix or Boston Consulting Group matrix. Second is GE 9 cell matrix or 9x9 matrix, and the third is product life cycle. So let us discuss about the first matrix which you might have studied in third semester in your marketing management subject. So Boston Consultancy Group और द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या है? बेसिकली एक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है जिसमें हम बिजनेस के डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाते हैं, कीपिंग इन व्यू द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी and the market growth rate. Okay,
सो ये स्ट्रेटेजिस्ट बेसिकली यूज करते हैं. दे मेक अ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड द बिजनेस यूनिट्स, and the basic purpose of adopting this approach is to channelize the resources at corporate level to all businesses, whether they are the SBUs or the other units of the business, and products that hold greater potential under the corporate umbrella. इसमें हम ये find out करते हैं which are the most promising business of a particular business group, and which are less profitable businesses which have lesser potential, and which are those businesses which can either be converted into more profitable one or either they can be shut down. तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं. बेसिकली जो BCG मैट्रिक्स है ये 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स होता है. ओके, इसमें यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होते हैं. हम इसमें एक्स एक्सिस पर लेते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. रिलेटिव मार्केट शेयर हम फाइंड आउट करते हैं बाय मेकिंग अ रेशियो ऑफ अ फर्म सेल to the total sales in the industry. For example, if you want to see the Reliance Jio's market share, suppose Reliance Jio is having a total of 19% sales of the total telecom provider or the network providers. जितने भी network provider हैं, whether there is Airtel, Vodafone Idea and other network service providers. तो इन सब में जो टोटल टेलीकॉम की जो सेल हो रही है, जो टोटल नेटवर्क प्रोवाइडर्स की जो सेल है, उस टोटल का 19% केवल जियो, रिलायंस जियो अगर कर रहा है, देन इट मीन्स दैट द मार्केट शेयर और द रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ रिलायंस जियो विल बी 19%. ओके, दूसरा हमने जो वाई एक्सिस पर लिया वो है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. बेसिकली बताता है कि जो टोटल मतलब ग्रोथ हो रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वो क्या चल रही है. ओके, ग्रोथ इन सेल्स इन परसेंटेज फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So here this is the diagram of BCG matrix in which we have taken relative market share on the x-axis and on the y-axis we have taken this market growth rate. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेंट में आता है स्टार. स्टार वो पर्टिकुलर बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के जो कि हाई मार्केट शेयर, जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत हाई होता है और मार्केट ग्रोथ भी उनकी हाई रहती है. ओके, क्वेश्चन मार्क्स में वो आते हैं जिनका मार्केट शेयर तो क्या है थोड़ा सा लो है बट उनकी ग्रोथ रेट हाई है. तो अब अगर हम इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करें, थोड़ा सा और अच्छा कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर और अच्छी जो मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस उस पर ध्यान दे तो उसको स्टार में कन्वर्ट कर सकती है. अदरवाइज वो क्या होगा, डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. देन द थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें आ रहा है कैश काउ. कैश काउ वो पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं जहां पर मार्केट ग्रोथ तो उनका कम होता है लेकिन मार्केट शेयर उनका हाई रहता है. ओके, अगर हम इसको हार्वेस्ट करें, इसको मतलब डिसइन्वेस्ट करें तो यहाँ पे हम अच्छा खासा कैश निकाल सकते हैं क्योंकि मार्केट शेयर हाई है. अगर हम इसको सेल करते हैं किसी दूसरे कंपनी को तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी जो है कैश इनफ्लो मिल सकती है. देन कम्स डॉग. डॉग में वो पर्टिकुलर वेंचर्स आते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका मार्केट शेयर भी लो है और इनका ग्रोथ रेट भी बहुत लो है मार्केट में. ओके, so we are going to discuss first of all the stars. The quadrant labeled as star represent the products or businesses that have high market share and high industry growth rate. Okay, these are the businesses that may or may not be self sufficient in cash flow. हो सकता है यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ज्यादा नहीं हो और फर्दर एक्सपेंशन क्योंकि रिक्वायर्ड होता है स्टार वाले बिजनेसेस के लिए तो और कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है और कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस में रिक्वायर मोर फाइनेंसिंग. ओके, द स्टार्स आर बिजनेसेस दैट आर ग्रोइंग फास्ट इन द मार्केट एंड हैव ऑलरेडी अटेन्ड अ larger market share. Therefore, they happen to provide the corporation with the best profits and growth opportunities. दूसरे होते हैं कैश काउज. as I have told you that इसमें क्या होता है कि लो ग्रोथ रहती है और हाई मार्केट शेयर रहता है. ये देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट लो है, नीचे आ रहा है, ग्रोथ रेट के कर्व में नीचे की साइड आ रहा है और मार्केट शेयर जो है वो हाई वाले में आ रहा है, कैश काउज. ओके,
सो दीज आर दोज बिजनेसेस। यहाँ पर क्या होता है, कैश काउज आर द बिजनेसेस दैट जनरेट हाई लेवल ऑफ कैश फ्लोज। क्योंकि यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत हाई है, इसका मतलब कि सेल्स ओवरऑल इंडस्ट्री में जितनी भी सेल्स हो रही है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, उसमें बहुत अच्छी सेल दे रहा है ये। तो ऑब्वियसली अगर सेल्स अच्छा दे रहा है तो प्रॉफिट्स भी अच्छे दे रहा होगा, तो कैश इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं इसमें। ओके, बट नीड्स वेरी लिटिल फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन क्योंकि आगे ग्रोथ नहीं है तो आगे इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है कंपनी के लिए। द स्ट्रेटेजिक फीचर्स ऑफ कैश काउ इज दैट द हाई कैश रिटर्न्स जनरेटेड मे बी यूज्ड टू पे डिविडेंड। तो जो भी कैश, अब क्योंकि फर्दर और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है, जितना भी कैश फ्लो आ रहा है उसके लिए वो क्या कर सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है, अपनी डेट्स पे कर सकती है। ओके, और फर्दर फाइनेंसिंग कर सकती है स्टार बिजनेसेस की कैश काउ प्रोजेक्ट से। ओके, so the best suited strategy that these businesses may adopt is stability और phased retrenchment strategy। तो यहाँ पर स्टेबल रहना होता है इन बिजनेसेस को, फर्दर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, जस्ट मेंटेन करना होता है अपने बिजनेस को, और जो भी उसे रिटर्न आ रहे हैं उनको अपने पेबैक्स में यूज करना होता है फॉर डिविडेंड से, डेट और फर्दर फाइनेंसिंग ऑफ द स्टार बिजनेसेस। क्वेश्चन मार्क्स में इनको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है इन पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स को। इसमें हाई ग्रोथ मार्केट रेट रहती है। ओके, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है लेकिन मार्केट शेयर बहुत लो होता है। तो अगर फर्दर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर, सेल्स स्ट्रेटेजीज पर ज्यादा फोकस किया जाए तो इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को या बिजनेसेस को स्टार्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉग्स। ओके, एंड देन कम्स डॉग्स। These are characterized by the low market share in slow growth industries। तो यहाँ पे मार्केट शेयर भी लेस है और यहाँ पे ग्रोथ रेट, जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो भी बहुत लो है। तो यहाँ पर इन बिजनेसेस को टर्न ऑफ करना, शट डाउन करना ही फायदेमंद होता है। और द स्ट्रेटेजी विच वी यूज इज द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, जहाँ पर हम बंद कर देते हैं बिल्कुल बिजनेस को। द बिजनेस और प्रोडक्ट्स कैटेगराइज्ड एज डॉग शुड बी अलाउड टू डाई और टू बी किल्ड। तो ये यहाँ पर एक इसका समरी है पूरा बीसीजी मैट्रिक्स का, जिसमें हम बीसीजी मैट्रिक्स और उसके स्ट्रेटेजिक चॉइसेस या स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट्स जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स में डिस्कस किए, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स हैं। यहाँ पर रिलेटिव मार्केट शेयर्स और इंडस्ट्री प्रोफाइल है इनकी, जो भी पोजीशन है, और जो स्ट्रेटेजी यूज होती है वो है। स्टार प्रोजेक्ट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए क्या करना होता है कंपनी को, और फर्दर एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए और ज्यादा कैश की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और फर्दर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करने पड़ेंगे। कैश काउ क्योंकि हाई मार्केट शेयर होल्ड करता है, लेकिन अभी इसमें क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट वी डोंट नीड फर्दर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके लिए हमें फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि इन पर्टिकुलर बिजनेस को जस्ट मेंटेन करना है, इनमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कि जितना इन्वेस्टमेंट हो गया सिर्फ उनसे रिटर्न्स खाने हैं और उनको जो है कंपनी के डिविडेंड पेमेंट में और डेट पेमेंट में, फाइनेंसिंग में स्टार प्रोजेक्ट्स की लगाना है। देन द क्वेश्चन मार्क्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी हम कर सकते हैं होल्ड, या रिट्रेंच स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। डॉग्स आर फीचर्ड बाय लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट, और यहाँ पर रिट्रेंचमेंट करना, शट डाउन करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज देयर विल बी लॉसेस। सो हियर देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एक प्रॉपर पोर्टफोलियो, एक पिक्चर में, एक फ्रेम में हम बिजनेस के पोर्टफोलियो को स्टडी कर रहे हैं कि विच आर द बेस्ट स्टार बिजनेसेस, विच आर क्वेश्चन मार्क, विच आर कैश काउज एंड विच आर डॉग, एंड विच स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। देन इसका क्रिटिक्स या शॉर्टकमिंग यही है कि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मार्केट शेयर डिटरमाइन करना किसी बिजनेस का ये बहुत टफ होता है। देन इसकी शॉर्टकमिंग जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स टू डायमेंशन में पढ़ी है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट की, इसमें कुछ जो कमियां रह गई थी उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो इसका एडवांस्ड वर्जन आया है दैट इज 9 सेल मैट्रिक्स। यहाँ पर इट इज ओनली 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स
दिस पर्टिकुलर बीसीजी। बट जो आपका जीई जनरल इलेक्ट्रिक का जो मैट्रिक्स है ये 9 सेल का है। इसमें टोटल 9 ग्रेड्स होते हैं। 9x9 का 3x3 का मैट्रिक्स होता है। ये 9 इसमें ग्रिड्स रहते हैं। और इट वाज गिवन बाय मैकिन्सी एंड कंपनी। ओके, मैकिन्सी एंड कंपनी ने इसको डेवलप किया था। एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस जस्ट लाइक द प्रीवियस बीसीजी मैट्रिक्स। ये भी कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस का मैट्रिक्स है। इट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी 2 डायमेंशन हम यूज करेंगे। फर्स्ट इज द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड सेकंड इज द बिजनेस स्ट्रेंथ। तो ये जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है ये भी आपका ये बेसिकली इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर बीसीजी मैट्रिक्स के मार्केट ग्रोथ रेट जैसा हो गया और बिजनेस स्ट्रेंथ बीसीजी मैट्रिक्स के रिलेटिव मार्केट शेयर वाले डायमेंशन जैसा हो गया। और ये जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ डायमेंशंस हैं ये कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर डिटरमाइन होती हैं। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो डिटरमाइन होगी मार्केट साइज क्या है, कंपनी का मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो पेस्ट एनालिसिस, डिमांड वेरिएबिलिटी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, ये सारी चीजें क्या है, इन सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होगा। और जो टोटल हम ओवरऑल एक क्वांटिटेटिव वैल्यू देंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को, वो इन सारे फैक्टर्स का एक वेटेड एवरेज होगी। देन सिमिलरली जो बिजनेस स्ट्रेंथ है इट विल बी अ कंपोजिट मेजर ऑफ द ग्रोथ इन मार्केट शेयर, द रिलेटिव मार्केट शेयर, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, ब्रांड क्वालिटी। मतलब जो मैंने आपको बताया ना जैसे बीसीजी मैट्रिक्स में आपका मार्केट शेयर था बिल्कुल उसी की जगह पे यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ आ गया था। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द कंपोजिट वैल्यू फॉर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ respectively involves assigning each of the component factor a weight depending on its perceived importance and multiplying it with the estimated value using 1 to 10। ये जो हम एक weighted average ले रहे हैं कि हर फैक्टर को हम एक वेटेज देंगे और उसकी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करके टोटल हम बिजनेस स्ट्रेंथ निकालेंगे, ऐसे हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस निकालेंगे। तो ये जो हम वेटेज दे रहे हैं हर पर्टिकुलर फैक्टर को, जैसे कि हमने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में सपोज मार्केट साइज को 0.3 वेटेज दिया, ग्रोथ रेट को 0.2 दिया, तो जो भी हम वेटेज यहाँ पर 1 to 10 के स्केल में दे रहे हैं ये मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होगा। ये आपका मैट्रिक्स है 9x9 सेल मैट्रिक्स है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको ट्रैफिक सिग्नल मॉडल भी कहते हैं या ट्रैफिक सिग्नल लाइट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन, येलो और रेड 3 कलर्स हम यूज करते हैं। रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर होल्ड और वेट एंड ग्रीन मीन्स टू गो। तो यहाँ पर भी इनका सेम मीनिंग है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेसेस ग्रो के लिए कहे जाते हैं, उनको एक्सपेंशन के लिए कहा जाता है कि दे शुड बी फर्दर एक्सपेंडेड एंड दे शुड ग्रो मोर expenditure or capital investment should be there in these kind of businesses where the industry attractiveness lie from high to medium and the business unit strength lie from strong to average। वहां पर उन पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो करना है, ओके, उनमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उनमें और बढ़ाना है। लेकिन वो बिजनेस जहां पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, ओके, या एवरेज है, और जो या मीडियम है, और जो आपके बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो एवरेज या वीक है, उन तीनों में आपको होल्ड करना है, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसको जस्ट मेंटेन करना है और जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं उनको रीप आउट करना है, ओके। एंड द थर्ड काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो एवरेज या वीक, वो आपका लो है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है और जो आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ है वो एवरेज या वीक है, वहां पर उन तीनों बिजनेसेस को आपको हार्वेस्ट करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, उसमें से उनमें से पैसा बिल्कुल निकाल के उन्हें सेल आउट करना है, क्लोज करना है, शट डाउन करना है, ओके। सो ये एक
9 सेल मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे 9 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेल मैट्रिक्स है, जहाँ ये बताया गया है कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, फर्दर और ग्रो करना है, किन सिनेरियोज में जस्ट होल्ड करना है, कहाँ पे हमें हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मतलब आपने देखा जैसे कि फसल को काट देते हैं तो उसकी जो कटाई है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे बिजनेस को हम बिल्कुल ही जब क्लोज डाउन कर देते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कहा गया है या डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया है। ओके, देन द थर्ड अप्रोच टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC। आपने पहले भी मार्केटिंग में पढ़ा होगा, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम जो भी कंपनी का सेल्स हिस्ट्री है उसके बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो कंपनी की सेल्स हो रही है उसके बेसिस पे कि बिजनेस यूनिट्स की क्या पोजीशन है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है। PLC हमेशा टाइम और सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बनता है। एक्स एक्सिस पे PLC में टाइम रहता है और वाई एक्सिस पे वी विल टेक सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफ। ओके, सो शुरू में जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज होती है वहां पर क्या होता है, वी जस्ट हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर एंड वी मे ऑल्सो हैव टू इनकर सर्टेन लॉसेस। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब कस्टमर्स परचेस करना शुरू कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है ब्रांड के लिए एंड दे स्टार्ट बाइंग द प्रोडक्ट एंड द सेल्स ऑफ द कंपनी कीप गोइंग। तो ये ग्रोथ स्टेज होती है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि और इंडस्ट्रीज भी और इंडस्ट्री में और भी कंपनीज मोटिवेट होती हैं, एंकरेज होती हैं उसमें उस बिजनेस को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने बनाने के लिए और सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रोथ स्टेज होती है। उसके बाद क्या आता है, मैच्योरिटी स्टेज आती है, जबकि जो सेल्स होती है वो हाईएस्ट होती है किसी भी कंपनी की, और उसके बाद फिर फर्दर डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 स्टेजेस वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द प्रोडक्ट फेज, इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में क्या है कि लोग शुरू में एक्सेप्ट नहीं करते, जो कंज्यूमर है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। ओके, जब फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड फोन्स आए होंगे, उससे पहले मोबाइल फोन फर्स्ट टाइम आया है या टेलीफोन फर्स्ट टाइम आया, ओके, कंप्यूटर्स फर्स्ट टाइम आए, या कोई भी प्रोडक्ट जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया तो पीपल गेट्स so experimental about the product, so judgmental that whether they should purchase the product or not, or whether they should wait to get a feedback from others and then they will buy. Okay, तो यहाँ पे स्लो होता है एक्सेप्टेंस इंट्रोडक्शन स्टेज में, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, हर्डल्स होते हैं इनिशियल स्टेप्स में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली लो सेल रहती है और प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि इनिशियल हर्डल्स कम होने लगते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट वो भी लो होने लगती है, और कंज्यूमर्स के मन में एक विश्वास आता है प्रोडक्ट के लिए, सो दे स्टार्ट इक्वली एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, henceforth गिविंग शार्प राइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और ज्यादा कंपनीज जो है या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री राइवलरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप ही अप्रोचेस रह जाती हैं, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाती है और लीड कर सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप आर द अप्रोचेस। एंड द थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज में क्या होता है, ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ग्रोथ तो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो सेल्स की जो ग्रोथ रेट है वो अब फर्दर कम हो जाएगी या स्टेबल हो जाएगी। तो कंपनीज का जो फोकस होता है वो इस मैच्योरिटी स्टेज को मेंटेन करने का होता है। जितना इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उतना वो खींचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, फर्दर और प्रोडक्ट इनोवेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं, कुछ वेरिएशंस लाते हैं, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में कॉम्पीट करते हैं। Then the finally is declining phase. Declining phase is a logical phase and is inevitable. हर प्रोडक्ट का डिक्लाइन फेज भी आता है, जिसमें कि जो उसकी ग्रोथ रेट होती है वो नेगेटिव होने लगती है, और some products may have an abrupt ending while others may have a fairly long one in a
मोर फेज्ड मैनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रही है सेल्स में, ठीक है। सो दिस श्रिंकेज कुड बी ड्यू टू मार्केट्स बिकमिंग सैचुरेटेड। अब क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, हर कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट्स थे वो अब क्या हो रहे हैं, ऑब्सलीट हो रहे हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है ना उसमें। तो अब प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है, नए तरीके की नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोडक्ट्स में, नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सलीट हो रहे हैं, इसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, डिक्लाइन। अब एलईडी टीवी आ गया, तो जो प्रीवियस वाले पहले वाले टीवी थे, कलर टीवी, पिक्चर ट्यूब वाले, अब वो ऑब्सलीट हो गए, तो उनका मार्केट तो डिक्लाइन फेज में जाना ही है। ओके, सो इन दिस वे स्ट्रेटेजिक चॉइस मे बी मेड बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रेटेजिक चॉइस ले सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको किस फेज में आप कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। इंट्रोडक्शन फेज में है तो आपको यू शुड वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट इज द फीडबैक ऑफ द consumers in the market. Okay, then you should invest more in the growth phase, because here the profitability is so high. If the products are in the maturity phase, then also there is no use of investing more. And finally in the declining phase, it will be just rubbish if someone just start in that declining phase. कोई बिजनेस ही अपना डिक्लाइनिंग फेज में स्टार्ट कर रहा है, अब सपोज एलईडी टीवी है, एलईडी से बेटर कुछ और टेक्नोलॉजी आ रही है अगर टेलीविजन में, एंड इफ समवन इज स्टार्टिंग द बिजनेस इन दैट और वो ऑब्सलीट हो रहा है, तो कोई उसका रेलिवेंस नहीं है, it will be a bad strategic choice. Okay, so that's it about today's lecture, in which we have studied about various strategic choices depending upon the three approaches, which were the BCG approach, okay, General Electrical's 9-cell matrix approach, and the product life cycle approach. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इन तीनों अप्रोचेस को आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, स्पेशली जो BCG मैट्रिक्स है और आपका ये 9-cell मैट्रिक्स है, एंड रेफरेंस यू बेटर नो, यू कैन विजिट दिस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।